ने ज्वाइन कर लिया होगा. So we are starting this meeting in the name of Allah, who is the most beneficent and most merciful. Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing great. And first of all, I would like to thank you all for being here. Let me introduce myself. My name is Hafsa Munib. I am DPT fourth year student from Gulabdev Educational Complex, and I am also host and ambassador of Al Noor Medical Sector. So I am giving my warmly thanks to entire team of Al Noor Medical Sector, especially Dr. Mahnoor Altaf. She is the founder and chairperson of Al Noor Medical Sector. She is giving us a prestigious platform for education, awareness, and converting our opportunities into achievements. So basically, the main objectives of Al Noor Medical Sector are providing career counseling, leadership training, arranging courses and workshops for enhancing knowledge of students, and much more. So today, our topic for webinar is sciatic nerve pain, and e-certificates will be provided to those students who will attend this session till the end and mark their attendance on YouTube comment section. This video will be posted on YouTube after 15 to 30 minutes after this session. You have to mention your name, your attendance in the comment section, and also the questions which Dr. Khatija will ask. You have to answer in the comment section, and then you will be provided with e-certificates. I hope you all understand. So our today's guest speaker is Hafiza Dr. Khatija. She is a consultant physiotherapist certified, hijama therapist certified in clinical high velocity, low amplitude and chiropractic techniques. So we warmly welcome Dr. Khatija. You can please start the session. Thank you, Hafsa. Assalamu alaikum, everyone. Hope you all are doing great. Assalamu alaikum, Dr. Mahnoor. Walaikum assalam. Today's our session is in sciatic nerve pain. We will start in the name of Allah. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, we will discuss about sciatic. What is sciatica? Okay. Basically, sciatica एक कंडीशन है जो कि पेनफुल कंडीशन है जो कि हमारे पास रेडिएट होती है हमारे lumbar region से sacroiliac joint से. Basically, sciatica is a condition characterized by pain that radiates along the path of the sciatic nerve, with branches from your lower back through your hips and buttock and down each leg. बेसिकली हम लोग यही सुनते हुए आ रहे हैं कि जो sciatic है ना वो राइट लेग में रेडिएट करती है, राइट लेग में रेडिएट करती है. बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट ये नहीं है. sciatic nerve जो है ना बेसिकली हमारे पास वो इरेगुलर कोई भी स्टेट होगी जिसमें आपको पेन फील होगा. कभी कभी हम लोग को सिम्टम डिस्क्राइब करने नहीं आते, ठीक है, हम उसको डायग्नोज नहीं कर पाते. कभी कभी इस तरह कि आप एक सवेयर कंडीशन ना होना तो वो ऑटोमेटिकली आपको जो sciatic है ना वो आप उससे रिकवर कर जाते हो. लेकिन सवेयर केसेस में होते हैं हमारे पास कि जो sciatic है ना वो हम लोग डायग्नोज करते हैं उसको अच्छे तरीके से, फिर उसमें इम्प्लीकेशंस देखते हैं, उसके कॉजेज देखते हैं, उसके सिम्टम्स देखते हैं, फिर देन उसके ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट के बाद उसके प्रिवेंशन वगैरह की तरफ हम लोग जाते हैं. आवाज क्लियर आ रही है आप सबको मेरी? जी मैम, यू आर ऑडिबल. ओके मैम. बेसिकली sciatica हमारे पास जो है उसकी एनाटॉमी अगर हम देखें तो sciatica डिस्क्राइब हम लोग करती है ऐसी कंडीशन, ठीक है, ऐसे पेशेंट में जिनमें हम क्या करते हैं सेंसरी डिस्ट्रीब्यूशन अगर हो रही थी ना, तो अगर नर्व इम्पिंज कर देती है हमारे पास sacroiliac जॉइंट और हमारे पास जो लंबर वाले वर्टिब्रास होते हैं ना उनकी तरह में इम्पिंज कर जाती है हमारे पास sciatic नर्व.
Pain from sciatic radiates from the buttock down the leg and can travel as far as the feet and toes. अब सवेयर कंडीशन में ये होता है कि हम लोग की जो पेन है ना वो लंबर रीजन से ओरिजिनेट होती है और रेडिएट करते करते ना हमारे बिग टो तक जाती है। और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि हमारे पास जो पेन है वो सिर्फ नीज के एरिया तक वहां पर रेडिएट करती है, वहीं पे स्टॉप कर जाती है। तो हम लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि हमारे पास ये बैक पेन लोअर बैक पेन है या हमारे पास स्ciatica पेन है। तो इसमें हम लोगों ने कंफ्यूज अगर रेडिएट कर रही है और इसमें हमारे पास कुछ इस तरह के सिम्टम्स हैं जो कि इंक्लूड हैं हमारे पास इसमें वाली हमारे पास जिसमें हम sciatic nerve इज अब हमारे पास जब इम्पिंज कर गया ना तो बेसिकली हमारे पास सबसे लार्जेस्ट नर्व है हमारे पास बॉडी में, जो कि 5 नर्व से मिलके उसके जंक्शन में उसकी ये नर्व बनती है। ये सबसे थिकेस्ट नर्व होती है हमारी बॉडी में, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर वाइड होती है, जो कि ट्रेवल करती है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई से और सप्लाई करती है मेजर पार्ट ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी से at the upper aspect of the popliteal fossa. It branches immediately to the tibial nerve and laterally to the common peroneal nerve. It is a mixed nerve. Basically जो हमारे पास नर्व है ना sciatic nerve, ये मैंने आपको बताया कि कोलेबोरेशन मतलब कि 5 नर्व्स होती हैं उस वो आपस में मिलती हैं तो हमारे पास sciatic nerve बनती है। उसमें से 2 जो है यहाँ पे मेंशन मैंने किया उसकी ब्रांचेस, जो कि मीडियली जाएगी टिबियल नर्व के साथ और लेटरली जो होगी कॉमन पेरोनियल नर्व की कलेक्शन से। और बेसिकली हम कहते हैं इसको कहते हैं मिक्स नर्व। फर्दर आगे अगर हम इसके डिस्कस करें तो कॉजेज क्या है हमारे पास sciatica के, तो sciatica के जो हमारे पास कॉजेज हैं उसमें आते हैं हमारे पास herniated disc, spinal stenosis, degenerative disc disease, piriformis syndrome। अब herniated disc बेसिकली हमारे पास क्या है, जो हमारे पास सॉफ्ट इनर मटेरियल होता है ना जो डिस्क का, वो प्रोट्यूड कर जाए बाहर की तरफ, ठीक है। उसकी जो डिस्क है वो लीक आउट हो जाए बाहर की तरफ और इरिटेट्स नियर बाय नर्व, जो उसके पास पास वाली नर्व्स होंगी उसको क्या करे, इरिटेट इम्पिंजमेंट उसको कॉज करे, मतलब कि हम लोग को पेन फील होना स्टार्ट हो जाए, तो वो हमारे पास होती है हर्निएटेड डिस्क। मतलब उसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास जो कार्टिलेज हमारे पास है, जो हमारे पास इनर मटेरियल है सॉफ्ट मटेरियल है, वो जो होगा वो डिस्क से स्लिप कर जाएगा, ठीक है, बाहर की तरफ आएगा। और जब वो बाहर की तरफ आएगा तो वो प्रेशर बाहर वाली नर्व्स पे अप्लाई करेगा, जिसकी वजह से शार्टिक पेन स्टार्ट हो सकती है हम लोगों को। स्पाइनल स्टिनोसिस, स्पाइनल स्टिनोसिस मीन्स हमारे पास जो होगा ये स्पाइनल केनाल जो होगी ना उसके अंदर नैरोइंग होना स्टार्ट हो जाएगी, जिससे हमारे पास क्या होगा, जो नर्व्स होंगी ना वो कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाएंगी, तो इसकी वजह से भी हम लोगों को शार्टिक पेन स्टार्ट हो सकती है। फर्दर अगर हम आगे प्रोसीड करें तो डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज, डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज में हमारे पास क्या है, वियर एंड टियर ऑन द डिस्क। मतलब इसमें क्या होगा, हमारे पास हमारे पास जो वर्टिब्राज हैं उनमें तोड़ फोड़ मतलब कि होना स्टार्ट हो जाएगी, सिर्फ वियर और टियर वहाँ डिस्क पे होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो डिस्क होगी वो हर्निएशन की तरफ जाएगी, जिसकी वजह से हर्निएशन होगी आपका जो सॉफ्ट मटेरियल है वो बाहर की तरफ प्रोट्यूड करेगा, तो वो क्या होगा, हमारे पास कंप्रेशन करेगा कॉज नर्व्स के अंदर, जिसकी वजह से शार्टिक पेन जो है वो स्टार्ट हो सकती है, उसके अंदर इम्पेजमेंट आएगी तो वो स्टार्ट हो जाएगी। पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम, पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम में क्या होगा, हमारे पास जो शार्टिक नर्व है ना उसमें कंप्रेशन और इरिटेशन स्टार्ट होगी पिरिफॉर्मिस मसल की वजह से, ठीक है। बटक रीजन के अंदर वो पेन जो है वो रेडिएट करेगी हमारे पास थाई वाले कंपार्टमेंट में, नी वाले एरिया में, काफ में, ठीक है, गैस्ट्रोसिनेमस और नीचे तक हमारे पास जाएगी कैल्केनियस बोन तक, फिर रेडिएट करते करते वो बिग टो तक हमारे पास जाएगी। अब जो इस मसल की वजह से सिंड्रोम, ये जो मसल की वजह से सिंड्रोम होगा, इसकी इम्पिंजमेंट की वजह से, इसके कंप्रेशन की वजह से, इरिटेशन की वजह से हमारे पास ये होगा पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम, भी एक वजह बनेगी शार्टिक पेन में। फर्दर आगे हम अगर देखें इसमें कि हमारे पास सिम्टम्स क्या हैं शार्टिक नर्व के, तो बेसिकली सिम्टम्स हमारे पास आ जाएगा, पेन रेडिएट करेगी, ठीक है। मतलब कि इसमें क्या होगा, एक ही लोकलाइज पेन नहीं होगी, अगर लोकलाइज पेन है तो वो किसी और वजह से होगी, उसमें L4 L5 L3 L2 ये सब चीजें इन्वॉल्व हो सकती है, लेकिन बेसिकली जो शार्टिक नर्व है ना हमारे पास वो स्टार्ट होती है फ्रॉम द रीजन ऑफ L4 L5 S1। इनके बीच में जब नर्व इम्पिंज करेगी या हर्निएटेड डिस्क होगी इस वर्टिब्रा के लेवल पे हमारे पास, तो वहां से हमारे पास क्या स्टार्ट होगी, शार्टिक पेन स्टार्ट होगी, जो कि फर्दर रेडिएट करेगी हमारे पास बिग टो तक
Radiating pain that travels from the lower back through the buttock and down the leg. The leg तक हमारे पास रेडिएट करेगी. Numbness और tingling sensation होगी. ठीक है, मतलब हमारे पास वहां पे सुन 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 सा फील होगा. मतलब वहां पे कुछ हम पिंच करेंगे, वहां पे प्रिक करेंगे तो वहां पे हम लोग को सेंसेशन फील नहीं होगी. फुट वाले रीजन में भी, लेग रीजन में, बटक रीजन में, थाई रीजन में, मतलब कहीं पे भी अगर आप करोगे ना, इम्पिंच करोगे, प्रिक करोगे तो आपको वहां पे फील नहीं होगा, क्योंकि वहां पे नमनेस वगैरह हो जाएगी, कॉज वीकनेस. अब अगर हम बात करें अर्ली स्टेज में, अगर पेन हमारे पास है फर्स्ट स्टेज में, तो हमारे पास उसमें मसल टोन जो होगा ना वो इतना वीक नहीं होगा. जैसे ऐसे स्वेयर कंडीशन में ज्यादा जाएगा हमारे पास, जिसमें आपको डिफिकल्टी होगी स्टैंडिंग में, सिटिंग में, इवन आप लेट रहे हो उसमें भी आपको क्या हो रहा है कि वहां पे पेन खत्म नहीं हो रही. तो उसमें जब वीकनेस आएगी तो उसमें आप लेग्स को मूव नहीं कर सकोगे. ठीक है, फुट को मूव नहीं कर सकोगे, क्योंकि वो जो मसल्स होंगे ना, वो जो उस रीजन में जिन्होंने कवर किया हुआ है आपके उस नर्व को, वो वीक हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको मूव करते वक्त डिफिकल्टी होगी, सिटिंग में, स्टैंडिंग में, किसी भी पोजीशन में आपको बैठना बहुत मुश्किल हो जाएगा. ठीक है, फिर पेन. बेसिकली पेन की हम लोगों ने बात की, रेडिएटिंग पेन की. तो पेन बेसिकली हमारे पास क्यों होगा? इसीलिए होगा कि हमारे पास जो नर्व्स होंगी ना, वहां पे प्रेशर अप्लाई हो जाएगा. प्रेशर अप्लाई होने की वजह से हमारे पास जो बहुत सारे लोग हैं जो क्या करते हैं, पेन को किस तरह डिस्क्राइब करते हैं हमारे पास आकर के, पेन जो है वो बर्निंग पेन है, जैसे हम लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है, हमसे बैठा नहीं जा रहा, खड़ा नहीं हुआ जा रहा. तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम लोग बहुत सारी ट्रीटमेंट्स को आगे फर्दर डिस्कस करेंगे. वो ट्रीटमेंट्स हम इसमें अप्लाई करेंगे, इसकी वजह से पेन को रिड्यूस करेंगे. फिर फर्दर आगे स्ट्रेंथनिंग स्ट्रेचेज और ये सब फर्दर प्रोसेस हम लोग आगे करवाएंगे. अच्छा, अभी तक मैंने जितना आप लोगों को बताया उसमें कोई क्वेश्चन हो तो, कोई क्वेरी हो तो आप डिस्कस कर लें, अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है. और इस क्वेश्चन का आंसर, व्हाट इज द साइट फॉर sciatic पेन? मटेरियल साइड पे. कोई इस क्वेश्चन का आंसर देगा? व्हाट इज द मैम साइट फॉर पोस्टीरियर sciatic पेन? पे. ओके, बेसिकली sciatic पेन जो हमारे पास है ना, ऑलमोस्ट कहीं से भी हमारे पास, मतलब कि पाथवे तो वही होगा. कभी लो बैक पेन में, कभी लो बैक पेन होगी हम लोग, कभी रीजन में पेन होगी, वही पाथवे वही चलेगा जो आपने बताया. मतलब कि बैक ऑफ थाई से फिर काफ में रेडिएट करेगी, और फिर फुट तक वहां जाके इम्पिंचमेंट जो आ रही है, बर्निंग पेन, शार्प पेन, वो शो करेगा हमारे पास. ये जो क्वेश्चंस मैंने पूछे, मैं आप लोगों ने यूट्यूब के पेज पे कमेंट सेक्शन पे जाकर इसका आंसर जरूर देना. ठीक है, जो आंसर देगा उसको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे. फर्दर आगे हम लोगों ने इसका डायग्नोसिस बनाना है. ठीक है, सबसे ज्यादा जो मेन चीज हम लोग फोकस नहीं करते अपनी स्टडी के दौरान, हम लोग जब भी इंटर्नशिप्स वगैरह करते हैं कुछ भी, तो हम लोग अपना डायग्नोज अच्छा नहीं बनाते. अगर आपका डायग्नोसिस बहुत अच्छा है ना, तो आप पेशेंट को देखते ही बता सकते हो कि इसको लो बैक पेन है या इसको शार्टिक पेन है. ठीक है, आप इन दोनों का डिफरेंस इजीली कर सकते हैं. अच्छा, डायग्नोसिस बेसिकली आपने क्या करना है, सबसे पहले उसको फिजिकली एग्जामाइन करना है. फिजिकली एग्जामाइन करके आप लोगों ने उसके सिम्टम्स देखने हैं, उसके आपने इवेल्युएशन करनी है. ठीक है, बेसिकली इवेल्युएशन करनी है आपने. अगर आप फिजिकली भी देख रहे हो उसको, फिजिकल देखने से कुछ ऐसी डिजीज होती है जो कि आप उसको एग्जामाइन कर लेते हो. अगर आपने अच्छी स्टडी किया, आपकी जो बैकग्राउंड स्टडी है वो अच्छी है, आपने अच्छी जगह से पढ़ा है, तो आप गाइड किया गया अच्छे तरीके से, तो आप फिजिकल एग्जामिनेशन देख के कर लेते हो. लेकिन अगर आप उसमें वीक हो तो आप क्या करोगे, सिम्टम्स देखोगे, उसके रिफ्लेक्सेस चेक करोगे, रेंज चेक करोगे. ठीक है, बेसिकली जो इफेक्टेड पार्ट होगा ना, उसकी रेंज ऑफ मोशंस चेक करोगे, उसकी स्ट्रेंथनिंग, उसकी सब चीजें कि किस ग्रेड में वो लाई कर रहा है, फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, थर्ड ग्रेड में, मतलब आप क्या करोगे, एमएमटी अप्लाई करोगे उसके ऊपर. सेकंड,
आप उसकी इमेजिनिंग टेस्ट करा सकते हो। बेसिकली आप क्या करोगे, एमआरआई कराओगे उसका, सीटी स्कैन करवा सकते हो आप लोग उसका, मतलब कि जिससे आपको स्पाइन आपको विजुअलाइज हो जाए, मतलब आप उसको बेसिकली देख के बता सको कि आपको ये डिजीज है, आपको ये पेन है, यहाँ पे इम्पिंजमेंट हो गया है, यहाँ पे वीकनेस सारी आइडेंटिफाई करोगे एबनॉर्मेलिटीज को थ्रू दीज टेस्ट। इलेक्ट्रोमायोग्राफी, इलेक्ट्रोमायोग्राफी के थ्रू भी आप क्या करोगे, टेस्ट टू असेस द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ मसल, मतलब उसके इर्द गिर्द, मतलब कि जो हमारे पास पेन है, बेसिकली जो पॉइंट है हमारे पास, उसके सराउंडिंग में जो मसल्स हैं, जो नर्व्स हैं हमारे पास, इलेक्ट्रोमायोग्राफी के थ्रू हम देख सकते हैं कि हमारे पास मसल्स और नर्व की कंडक्शन क्या है, एक्टिविटीज क्या है उनकी। फर्दर आगे हमारे पास आ गया ट्रीटमेंट ऑप्शन। ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं हमारे पास, इंटरवेंशनल ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं, और फर्दर आगे अगर हम जाए तो हमारे सर्जिकल ऑप्शन भी आएंगे, फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट भी इसी में आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, ट्रीटमेंट ऑप्शन में हम लोग एज अ फिजियोथेरेपिस्ट इसको क्या कहते हैं, ट्रीट करते हैं। ये बेसिकली अगर हम फर्स्ट स्टेज में इसको असेस करें ना, तो हम ये शार्टिक नर्व जो है ना, अगर कुछ देर इसको क्या करें, एक्सरसाइज कराएं, स्ट्रेंथनिंग कराएं, टेंस वगैरह यूज करें, फिजिकल थेरेपी अप्लाई करें, तो वो विद इन अ 4 वीक्स तक हम उसको कम्प्लीटली ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर सिवियर कंडीशन में है तो ये 6 वीक to 8 वीक्स या 12 वीक्स तक ये जो प्रोसेस है वो जा सकता है आगे। अब ट्रीटमेंट ऑप्शन है हमारे पास, फिजिकल थेरेपी तो है ही, लेकिन उससे हटके जो ऑप्शंस हैं हमारे पास ट्रीटमेंट के, वो है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट्स, सेकेंड वन है इंटरवेंशनल ट्रीटमेंट, और सर्जिकल ऑप्शन। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से हमारे पास आ जाएंगे जितनी भी जो नॉन इन्वेजिव अप्रोचेज हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल थेरेपी करते हैं, रेस्ट करते हैं, मेडिकेशंस लेते हैं, कोई भी इस तरह की चीज से हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई कर, जिससे हमारी पेन जो है वो रेडिएट होना कम हो जाए, हमारी जो पेन है वो रिड्यूस हो जाए। वो सब चीजें आ जाएंगी हमारे पास कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट्स में। द सेकेंड वन इज इंटरवेंशनल ट्रीटमेंट्स, ठीक है, ऐसे प्रोसीजर जैसे हमारे पास हम लोग स्टीरॉइड्स वगैरह लेते हैं, इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, पेन किलर्स लेते हैं, जिससे नर्व की जो हमारे पास पेन कंडक्शन होती है ना, उसको हम ब्लॉक कर देते हैं टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन एंड रिलीफ पेन, जिससे हमारे पास जो पेन होती है वो जल्दी से रिलीव हो जाती है, विद इन अ मिनट्स हमारी पेन जो होती है वो रिलीव हो जाती है। और उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन भी जो होती है ना, उस रीजन के सराउंडिंग में जो इन्फ्लेमेशन होती है, वो भी स्टीरॉइड से, मतलब कि एपिड्यूरल स्टीरॉइड वगैरह से होती है, कम हो जाती है। सर्जिकल ऑप्शन में हम लोग क्या करते हैं, डाइसेक्ट करते हैं उस चीज को, ठीक है, प्रोसीजर जिसके अंदर हमें करते हैं, प्रेशर जो के नर्व के ऊपर कॉज करी थी प्रेशर, उसको कम करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, वहाँ पे सर्जिकल ऑपरेशन वगैरह करते हैं। फर्दर आगे हमारे पास आ जाता है इसका फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारी फील्ड के लिए, कि हमने ऐसे पेशेंट्स को जिनको सिवियर पेन है और जिनको माइल्ड और मॉडरेट पेन है, उनको कैसे हम लोगों ने फर्दर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, कैसे उसको असेस करना है, कैसे उसको फर्दर हम लोगों ने आके लेकर चलना है। तो फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट, बेसिकली हमारे पास जो फिजियोथेरेपी है ना, वो बहुत ही ज्यादा क्रुशियल रोल प्ले करती है ट्रीटमेंट, शार्टिका के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। उसमें से कुछ जो है वो मैंने नीचे डिस्कस किया है, कुछ मैं आप लोगों को वैसे ही बता दूंगी। सबसे पहले हम लोग जिसमें करते हैं वो मैनुअल थेरेपी करते हैं डिस्कस, कि हमारे पास जो फिजिकल थेरेपिस्ट हैं वो क्या करेंगे, मैनुअल थेरेपी के थ्रू इस मैनुअल थेरेपी की टेक्निक्स अप्लाई करके शार्टिक पेन को रिड्यूस करेंगे, वहां पर पेन जो है उसको कम करेंगे। ओके, मैनुअल थेरेपी, इसमें हमारे पास ऐसी टेक्निक होंगी जैसे हम लोग स्पाइनल मोबिलाइजेशन करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, जो हमारे पास स्पाइन बेसिकली स्पाइनल मोबिलाइजेशन और मैनिपुलेशन के थ्रू हम लोगों ने स्पाइनल अलाइनमेंट को इम्प्रूव करना है, और वहां पे जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है बाकी नर्व्स पर, जो हम लोगों ने सिम्टम्स पढ़े हैं, जैसे हर्निएटेड डिस्क होगी हमारे पास, पिरिफॉर्मिस वाला हो गया, वीकनेस होगी, हम बस उसको हम लोगों ने रिड्यूस करना है, ठीक है।
सेकेंड वन हम लोगों ने ये करना है स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस वहां पर अप्लाई करनी है। स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस से बेसिकली क्या होगा, हम लोगों को ये हेल्प करेंगी ताकि हम क्या कर सके, शैटिक पेन जो है ना उसको इम्प्रूव करें, फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पे प्रोवाइड करें, उसकी जो मसल टेंशन, अच्छा मसल में जब टेंशन आएगी, जब भी हम किसी चीज में खिंचाव लेकर आएंगे, कोई चीज खींचना स्टार्ट होगी तो वहां पर ऑटोमेटिकली पेन आना स्टार्ट हो जाएगी। वहां पर जो मसल टेंशन होगी उसको कम करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो मसल्स हैं उसको स्ट्रेंथनिंग सपोर्ट करेंगे वहां पर, और जो स्पाइन होगी, जो पेल्विस होगी, उसमें भी स्ट्रेंथनिंग सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। थर्ड वन इज कोर स्ट्रेंथनिंग, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे वहां पर, कोर मसल जो हमारे पास है ना उसको स्ट्रेंथन करेंगे ताकि हमारे पास जो स्पाइन है वो स्टेबलाइज हो जाए, ठीक है। और वहां से जितना भी स्ट्रेन, जितना भी प्रेशर, जितनी भी फोर्स हमारे पास वहां पर लो बैक पे अप्लाई हो रही है, उसको हम लोगों ने क्या करना है, रिड्यूस कर देना। फर्दर हमारे पास हम लोग क्या करेंगे, जो शार्टिक नर्व, जिससे बेसिकली जो जहाँ पे दबाव आ रहा है, जहाँ से हमारी पेन जो है वो स्टार्ट हो रही है, वहां पे हम लोगों ने करना है, प्रेशर को रिड्यूस करना है, प्रेशर को कम करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको कोर स्ट्रेंथनिंग के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं। वहाँ पे जितने मसल्स होंगे वो क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे उसको, स्पाइन में जितना भी प्रेशर आ रहा है उसको कम करेंगे, वहाँ की टेंशन को कम करेंगे हम लोग, इन्फ्लेमेशन को करेंगे बाय, हमारे पास जो प्रोसेस है ना, सबसे पहले जो फिजिकल थेरेपी में आपने अप्लाई करना है कि आपके पास पेशेंट आए बहुत सीवियर कंडीशन में, तो आप सबसे पहले उसको ट्रीट करने के लिए आइसिंग यूज करोगे। प्राइस जो आप लोगों ने पढ़ा है वो वाला मेथड आप पहले यूज करोगे, उसमें आप क्या करोगे, आइसिंग सबसे पहले करनी है आपने, हीट से पहले आइस करोगे उसको। आपको जहाँ पे मसल्स होंगे वो क्या करेंगे, उस वाले रीजन को वहां पर जो पेन होगा, पेन रिसेप्टर स्टॉप हो जाएंगे आपके, ठीक है। उसके बाद फर्दर जो आपका प्रोसेस है वो स्टार्ट करोगे आप लोग। फिर इसे कोल्ड थेरेपी आ गई, हीट थेरेपी आ गई, ठीक है। अब कोल्ड और जो हॉट पैक आप अप्लाई करोगे वो भी इन्फ्लेमेशन को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, पेन जो एलिवेट हो रही होगी उसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, ठीक है। हीट थेरेपी से पहले आप लोग कोल्ड थेरेपी देते हो, ठीक है। कोल्ड थेरेपी बहुत ज्यादा हमारी फील्ड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे हम लोग बहुत सारी डिजीज को इनिशियली उसको रिकवर कर सकते हैं थ्रू कोल्ड थेरेपी। अब जो हीट थेरेपी हमारे पास है, कैन ऑल्सो हेल्प रिलैक्स टाइट मसल्स। बेसिकली जो हमारे पास हीट थेरेपी है ना वो क्या कर, वहां पर जो हमारे पास टाइटनेस आ गया, वो मसल्स क्या करेगी, रिलैक्स करेगी। फिफ्थ वन हमारे पास जो है वो है अल्ट्रासाउंड थेरेपी। अल्ट्रासाउंड थेरेपी जो हमारे पास है, इसमें हम लोग फ्रीक्वेंसीज को डिस्कस करते हैं, ठीक है। बेसिकली इसलिए अगर हमारे पास डीप टिश्यूज में कोई पेनेट्रेशन हो गया है, कोई पेन जो है वहां तक जा रही है, उसकी जो उसको क्या करेगा, अल्ट्रासाउंड थेरेपी से हम हील करेंगे, वहां पर भी इन्फ्लेमेशन इसके थ्रू भी कम करेंगे, और हम भी करेंगे यहाँ पर पेन को भी रिड्यूस करेंगे थ्रू अल्ट्रासोनिक ट्रीटमेंट। फिर हम जिससे बहुत ज्यादा फेमिलियर हैं, टेंस। टेंस बेसिकली हमारे पास क्या है, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन, जिससे हम लोग क्या करेंगे, माइल्ड इलेक्ट्रिकल करंट अप्लाई करेंगे, ठीक है, स्किन के अंदर, जो कि क्या करेगा, पेन को रिलीफ करेगा। पेन सिग्नल्स होंगे हमारे पास जो ब्रेन की तरफ जा रहे हैं उसको क्या करेगा, स्टॉप करेगा, ठीक है। पेन की रेडिएशन है वो स्टॉप होगी वहां पर, जिसकी वजह से वो जो इम्पिंजमेंट आ रही है, वो जो हमारे कंप्रेशन आ रहा है, वो हो जाएगा वहां पर उस एरिया, उस रीजन में पेन रिडक्शन का वजह बनेगी हमारे पास। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है ना हमारे पास, वो है पोस्चरल एजुकेशन। देन हम लोग जितनी भी डिजीज के बारे में डिस्कस करते हैं, चाहे वो शार्टिक हो, चाहे वो फ्रोजन शोल्डर हो, चाहे जितनी भी डिजीज हो जो कि इन सब चीजों से रिलेटेड हो, स्पॉन्डाइलोसिस हो, स्पॉन्डाइलोसिस, तो हमारे पास ये सब जितनी भी डिजीज है ना, हमारे पास 99% डिजीज होती है पोस्चर, बैड पोस्चर की वजह से हमारे पास। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले पेशेंट को एजुकेट करना है कि अपने पोस्चर को आप ठीक रखें, ठीक है, प्रॉपर पोस्चर के साथ बैठे। बॉडी मैकेनिक्स हमारे पास जो है वो क्या करते हैं, हमारे पास जितनी भी जो चीजें, स्टार्टिक पेन, कोई भी पेन हमारे पास जो है उसको क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। प्रमोट लॉन्ग टर्म स्पाइनल हेल्थ, और स्पाइनल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है कि अगर आपका पोस्चर बहुत अच्छा है तो आप क्या करते हैं, बहुत सारी डिजीजेस से, बहुत सारे फर्दर जितने आपके आगे आगे जाके आपको कोई बीमारी सकती है, उससे आप क्या करते हो, पहले से खुद को प्रिवेंट कर लेते हो, अगर आपका पोस्चर बहुत ज्यादा अच्छा हो।
उसके बाद आप एक्टिविटी मॉडिफिकेशन बताओगे, ठीक है, पेशेंट को कि आपने क्या करना है, आपने पेशेंट को एडवाइस करना है कि आपकी डेली एक्टिविटीज क्या होनी चाहिए, ठीक है, आपकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, आपकी मूवमेंट क्या होनी चाहिए, आपको ऐसी मूवमेंट करने से अवॉइड करना चाहिए, आपको गलत पोजीशन में बैठने से अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, आप कैसे मैनेज करोगे अपनी पेन को, आपके अगर सिम्टम्स एग्रीवेट करें, अगर आपको हर्निएटेड डिस्क है, बेसिकली हम लोग सिर्फ ये पढ़ते हैं कि हमारे पास जो शार्टिक नर्व पेन है ना वो हमारे लोअर लिम्ब में ही रेडिएट करती है, और हम लोग को जो कंसेप्ट देता है उसमें देखिए राइट लेग में क्या करेगी, पेन जो है वो रेडिएट करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे बोथ लेग्स में मतलब किसी भी पार्ट में हमारे पास जो है पेन रेडिएट कर सकती है। बेसिकली पोजीशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपने उसको मूवमेंट के बारे में बताना है कि आपने ऐसे नहीं करना, आपने पोस्चर स्ट्रेट रखना है, आपने ज़्यादा झुकना नहीं है, आपने इस पोजीशन में ज़्यादा लेटना नहीं है, अगर आपको पेन है तो आप लोगों ने कौन कौन सी एक्सरसाइजेस को फर्दर आगे एग्जीक्यूट करना है, ये सब चीजें आपने उनको बतानी है, उनको गाइड करना है, एजुकेट करना है आपने फर्दर उनको, आप लोगों ने इनको एजुकेट ताकि हमारे पास जो पेन की इम्पिंजमेंट है ना फर्दर जो है वो इरिटेट ना करे शार्टिक नर्व को। एजुकेशन और इकोनॉमिक एडवाइजेस देनी है आप लोगों ने उनको, आप लोगों ने क्या करना है उनको बताना कि अगर कॉजेज ये हैं, इसकी स्ट्रेटजीज ये हैं, हम लोगों ने कैसे इनको मैनेज करना है डेली लाइफ में, हमने पेशेंट्स को इंटरेक्टिव वे में लेकर आना है, क्योंकि शार्टिक पेन अगर आप पेशेंट देखें तो वो ऐसे पेशेंट है कि रोते हुए भी आते हैं हमारे पास, हम लोगों ने उनको उनके साथ क्या करना है, एक तो एम्पावर करना है पेशेंट को कि अगर आप इस तरह डेली लाइफ में रहेंगे तो आपकी पेन जो है वो जल्दी ठीक हो जाएगी, जल्दी रिड्यूस हो जाएगी, तो हम लोगों ने क्या करना है, ये एक्टिविटीज उनको परफॉर्म करानी है। लास्ट पॉइंट हम लोगों ने ये करना है ग्रेजुअल रिटर्न टू एक्टिविटी, हम लोगों ने उनको आहिस्ता आहिस्ता करना है एक्टिविटीज की तरफ लेकर आना, ठीक है, इससे अगर हमारे पास जो फिजिकल एक्टिविटी है, जो उनकी जो स्पाइन है, स्पाइन में जैसे हर्निएटेड डिस्क हमारे पास है, वो क्या होगा, एक सॉफ्ट मटेरियल बाहर आने से वो बहुत सारी नर्व्स को, बहुत सारे मसल्स को इफेक्ट कर रहा है, तो हम लोगों ने क्या करना है एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, हमने उनको गाइड करना है ताकि वो अपनी दोबारा से जो डेली रूटीन है उसकी तरफ वापस आ सकें, उस चीज को जब वापस आने के बाद फिर कैसे प्रिवेंशन करनी है, ये भी क्या है फिजिकल थेरेपिस्ट का ही काम है कि उसने क्या करना है, उसको रिहेबिलिटेट करना है, प्रमोट करना है इस चीज को कि आपने अगर अब आपकी पेन कम हुई है, तो आपने फर्दर जो है इसको आगे कैसे प्रोसीड करवाना है आपने पेन, ताकि आगे इंक्रीज ना हो। हमारे हर इंडिविजुअल के लिए ये जरूरी है कि हम लोग क्या करें, क्वालिफाइड फिजिकल थेरेपिस्ट जो हम लोग हैं ना, हम लोग क्या करें, उनको ट्रीट करें, उनका एक पूरा का पूरा प्रॉपर प्लान है, जैसे हम लोग फोर्थ सेमेस्टर के बाद फिफ्थ सेमेस्टर में स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग को टीचर्स कहते हैं कि आप लोग क्या करो, हिस्ट्री वगैरह, हिस्ट्री टेकिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें, लेकिन सिर्फ हम लोग सिर्फ ये पढ़ते हैं कि शार्टिक क्या होती है, यहाँ से निकलती है, इसकी इसकी जो हमारे पास जो नर्व रूट है वो यहाँ से है, यहाँ से डिस्टर्ब होता है हमारे पास, फिर इस वाले लेग में रेडिएट करता है, बिग टो में जाता है हमारे पास। हम लोग को ये चीज पता होनी चाहिए कि जो शार्टिक नर्व है ना हमारे पास, उसका जो रूट है, उसकी जो कॉज है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट जैसे इंटीरियर में, लेटरल, मीडियल, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, फिर डिस्कस करना आप लोगों ने उसको, उसके गोल्स, उसकी नीड, जैसे हम लोग कहते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म गोल्स में आपने क्या करना, शॉर्ट टर्म गोल्स में आपने उसको, हम लोगों ने जैसे बात की है मैनुअल थेरेपी हम लोगों ने करवानी होती है उनको, फिर हम लोगों ने उनको लेके चलना होती, ठीक है, फिर हम उस लॉन्ग टर्म गोल की तरफ, उसमें करते हैं मोबिलाइजेशन, उसमें स्पाइनलाइजेशन करते हैं, प्लान पेशेंट को डिस्चार्ज के बाद, और ट्रीटमेंट ऑप्शंस के अलावा ये जो हम चीजें डिस्कस करते हैं, ये वो चीजें जो कि हम अपने शॉर्ट टर्म गोल्स में, लॉन्ग टर्म गोल्स में और प्लान ऑफ केयर में डिस्कस करते हैं पेशेंट के साथ। अच्छा, शॉर्ट टर्म गोल में आपका एक ही बचेगा कि आपने पेन को रिड्यूस करना है, उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, उनकी जो मोबिलिटी है उसको इम्प्रूव करना है, स्ट्रेंथनिंग कोर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करनी है, और आपने पोस्चर को उनको एजुकेट करना है कि वो शॉर्ट टर्म गोल में ही आएगा, ठीक है, आपने अपने पोस्चर को इम्प्रूव करना है, और लॉन्ग टर्म गोल में हम लोगों ने उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरफ लेके जाना है, उससे कहना है कि आप अपनी सेल्फ मैनेजमेंट सीखें, ठीक है, लेकिन अगर कोई फिजिकल थेरेपिस्ट नहीं है आपके पास, है कोई भी आपका प्रोसेस आप लोगों ने करना, परफॉर्म करना। ओके,
फिर आपने थर्ड वन है प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, और आपने पेन मैनेजमेंट करनी है। फिर आप इंटरवेंशन की तरफ आते हो, ठीक है, मैनुअल थेरेपी जैसे मैं आपको डिस्कस करी थी, स्पाइनल मैनिपुलेशन, न्यूरल मोबिलाइजेशन, मायोफेशियल रिलीज, मैनुअल स्ट्रेचिंग, ये सब कुछ आपने मैनुअल थेरेपी में डिस्कस करना है। मैनुअल थेरेपी में उनको परफॉर्म कराना है खुद आपने, ये चीज को कि अपने स्पाइन है उसको मोबिलाइज कर दिया, ठीक है, मायोफेशियल रिलीज करा दिया हमने और मैनुअल स्ट्रेचिंग करा दी, ठीक है। अब आगे हमारे पास आ गया है एक्सरसाइज थेरेपी। एक्सरसाइज थेरेपी में आप क्या करोगे, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचेस वगैरह प्रोवाइड करोगे, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में जरूरी है हमारे पास, ठीक है। ओके, फर्दर आपके पास आ जाएगा इसमें कि हम लोगों ने करना है एक्सरसाइज थेरेपी, पेल्विक टिल्ट्स भी हम इसमें करेंगे। योगा भी जो है वो बहुत इफेक्टिव है सियाटिक नर्व पेन को रिलीज करने के लिए। इलेक्ट्रोथेरेपी मैंने आपको डिस्कस किया, टेंस यूज करेंगे, अल्ट्रासाउंड यूज करेंगे, और इंटरफेरेंशियल थेरेपी भी हमारे पास इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है। ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। अब मैं आपके साथ होम प्लान केयर डिस्कस करी थी कि हम लोगों ने क्या करना है, जैसे हाँ बस हम लोगों ने ट्रीटमेंट कर लिया उसका। अब आपके पास आगे प्रिवेंशन, प्रिवेंशन के बाद डिस्कस करते हैं हम लोग होम प्लान जो केयर हम लोग उसको देंगे, उसके अंदर क्या हम लोगों ने करना है। अब प्रिवेंशन में क्या करना है, आप लोगों ने उसका गुड पोस्चर मेंटेन करवाना, ठीक है। एक्सरसाइज उसे कहना है कि आप रेगुलरली एक्सरसाइज करो, और प्रॉपर लिफ्टिंग टेक्निक हमने क्या करना है उसको कहना है प्रैक्टिस करो। उसके बाद जब वो प्रिवेंशन की तरफ जाएगा तो वो खुद सेल्फ मैनेजमेंट में इसको ऐड करेगा, ठीक है। टेक ब्रेक्स फ्रॉम सिटिंग, मतलब ज्यादा देर हमने उसे कहना है कि आप एक जगह पे ना बैठें, ज्यादा देर एक जगह पे खड़े ना हो, मतलब कि एक पोस्चर में एक पोजीशन में ज्यादा देर तक आपने नहीं रहना, ठीक है। उसको आपने स्विच करते रहना, अपनी हेल्दी वेट जो हमारे पास होगा उसको मेंटेन करना हम लोगों ने। अच्छा, होम प्लान नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास जो है वो इफेक्ट्स है सेंसरी और मोटर। इफेक्ट ऑफ स्टैटिक नर्व इंजरी, मोटर इफेक्ट हमारे पास कहता है और सेंसरी इफेक्ट कहता है। अच्छा, मोटर इफेक्ट में पैरालिसिस और सेंसरी इफेक्ट में पैरालिसिस, ठीक है। मूवमेंट कैसे इफेक्ट करेगी दोनों में, मतलब कि हमारे पास अगर मोटर रीजन है वहां पर कैसे इफेक्ट आएगा स्टैटिक नर्व इंजरी का, अगर सेंसरी है वहां पर कैसे इफेक्ट आएगा स्टैटिक नर्व इंजरी का। अगर हम मोटर इफेक्ट की बात करें तो पैरालिसिस ऑफ हैमस्ट्रिंग्स, ऑल मसल्स ऑफ लेग एंड फुट। मूवमेंट जो इफेक्ट होगी उसकी फ्लेक्शन ऑफ नी एंड एक्सटेंशन ऑफ हिप, ऑल मूवमेंट ऑफ द लेग एंड फुट, मतलब ये स्ट्रिक कर देंगे, इससे इफेक्ट आएगा, ठीक है। अगर मोटर फंक्शन हमारे पास इफेक्ट होता है, ठीक है। बेसिकली दो फंक्शन होते हैं ना हमारे पास, एक होता है मोटर फंक्शन, एक होता है हमारे पास सेंसरी फंक्शन, ठीक है। जो हमारे पास मोटर लाइक फीट वाले रीजन में मूवमेंट प्रोड्यूस इन योर लेग एंड फीट टू मूव। और जो सेंसरी फंक्शन हमारे पास होता है वो क्या करता है, हम लोगों को जैसे सेंसेशन किसी भी एरिया में फील कराने के लिए, सेंसरी फंक्शन हेल्प्स यू फील सेंसेशन इन योर लेग्स, ठीक है। ऑल दो हमारे पास जो स्टैटिक नर्व है वो पास करती है ग्लूटियल मसल्स, ठीक है, बटक रीजन से, और वो हम लोग को करती है, इट डज नॉट प्रोवाइड एनी नर्व ब्रांचेस टू दीज मसल। और इन मसल्स के हम लोग ऐसे मोटर फंक्शन में जो मसल्स इन्वॉल्व होते हैं उसको क्या करती है, हमारे पास नर्व ब्रांचेस होती है ना इस मसल्स की, वो प्रोवाइड नहीं करती स्टैटिक नर्व की। अब अगर हमारे पास सेंसरी इफेक्ट होगा हमारे पास, तो लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाएगी बिलो द नी, मतलब नी से जो नीचे वाला एरिया होगा हमारे पास वहां पर क्या होगा, हमारे पास सेंसेशन जो होगी वो खत्म हो जाएगी, एक्सेप्ट द एरिया सप्लाइड बाय स्पाइनस नर्व, ठीक है, और फेमोरल, मतलब फेमोरल नर्व जो रीजन होगा वहां पर नहीं होगा, बल्कि जहां से स्टैटिक नर्व पास करेगी वो वाले रीजन में जो सेंसेशन है वो कर जाएंगी, डिस्ट्रिक्ट कर जाएंगी। अब बेसिकली हम लोगों ने स्टैटिक नर्व पेन को तो डिस्कस किया, तो इसके साथ हम लोग को ये बता दूं कि स्टैटिक नर्व जो है वो कहाँ पे लोकेट करती है, मैंने डिस्कस भी किया है, लेकिन एक रूल जो फर्दर मतलब आपको डिस्कस कर लूँ, तो स्टैटिक नर्व जो होती है वो स्टार्ट जस्ट आउटसाइड द बेस ऑफ योर स्पाइन, spine of lumbar spine and sacral region. It runs through the top of your gluteus muscle, buttock region, and down the back of your thighs, hamstring, and your lower leg, मतलब calves में मूव करेगी, ठीक है। और सबसे बिगेस्ट नर्व हमारे पास कौन सी है, शार्टिक नर्व है। और मैंने आपको इसकी थिकनेस बताई है 2, मतलब 2 हमारे पास जो है सेंटीमीटर वाइड है हमारे पास इसकी जो थिकनेस है।
और मैंने आपसे डिस्कस किया था कि इसके अंदर 5 नर्व्स जो है वो इन मतलब कि 5 नर्व रूट्स जो हैं वो मिलकर शार्टिक नर्व को जनरेट करती हैं। जैसे हमारे पास 2 नर्व रूट स्टार्ट इन योर लोअर बैक, मतलब लंबर स्पाइन से आती है हमारे पास 2 नर्व रूट। और जो 3 नर्व रूट्स होती हैं वो स्टार्ट होती है हमारे पास सेक्रम रीजन से, ठीक है, बॉटम ऑफ योर स्पाइन जो बिल्कुल लोअर होता है ना हमारे पास सेक्रम, ठीक है। उन वर्टिब्रा से जो 3 नर्व रूट हैं वो, और जो हमारे पास बैक वाला लोअर बैक वाला रीजन है वहां से 2 नर्व रूट्स आपस में करते हैं कलेक्शन करते हैं, मतलब कि कंबाइन करते हैं, और हमारे पास शार्टिक नर्व जो होती है वो फॉर्म होती है, ठीक है। ये जो शार्टिक नर्व हमारे पास होती है ये आउटसाइड द बेस ऑफ योर स्पाइन टू फॉर्म द शार्टिक नर्व, ठीक है। ऑल द रूट्स ऑन द लेफ्ट साइड कंबाइन टू फॉर्म योर लेफ्ट शार्टिक नर्व व्हाइल द सेम इज ट्रू फॉर द राइट, मतलब कि दोनों साइड पे ये चीज हो रही होगी, हमारे पास जो राइट साइड पे होंगे वो राइट वाली शार्टिक नर्व फॉर्म करेंगे, जो लेफ्ट साइड पे होंगे वो लेफ्ट साइड वाली शार्टिक नर्व को क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। अब मैंने ब्रांचेस भी डिस्कस किए हैं, हमारे पास होती है कॉमन पेरियन नर्व मैंने जो आपको दिखाई है, और टिबियल नर्व हम लोगों ने डिस्कस किया इसको, ठीक है। और स्मॉल ब्रांचेस में देखा हमारे पास इनर थाई, लोअर लेग्स, फीट, हिप्स डिसऑर्डर्स को भी डिस्कस हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, कि हमारे पास किन किन कौन कौन सी कंडीशंस होंगी, कौन कौन से डिसऑर्डर्स होंगे जो sciatic नर्व में होंगे, इम्पिंजमेंट, इरिटेशन, इनफ्लेम, ठीक है। इसमें ना एक और चीज डिस्कस करना है, अगर हम तो हम लोगों ने जैसे डीजनरेटिव डिस्क पढ़ा है, हर्निएटेड डिस्क पढ़ा है, इसमें ना बोन स्पर्स भी बन सकते हैं, मतलब कि हम लोग को पता है कि हार्ड बोन्स जो हार्ड, जैसे हम कोई पोटैटो देखते हैं उसके ऊपर से जिंजर देखते हैं उसके बर्ड्स बनाते हैं ना, इसी तरह हमारी बोन्स पे भी स्पर्स वगैरह बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर वहां पर वहाँ वो भी स्टार्ट हो तो उसकी ऑस्टियोफाइट्स, बेसिकली हम लोग उसको ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं, अगर वो ग्रो कर जाए तो sciatic नर्व में इनका भी रोल होता है हमारे पास। बाकी लंबर स्पॉन्डाइलोथिसिस, ठीक है, स्पॉन्डाइलोथिसिस भी बेसिकली हमारे पास क्या होती है कि व्हेन वन ऑफ योर वर्टिब्रा स्लिप्स आउट ऑफ प्लेस, ठीक है, हमारे पास एक जो वर्टिब्रा होगा वो स्लिप होकर बाहर की तरफ आएगा ऑन टू द वर्टिब्रा बीनीथ इट, तो उसके नीचे वाली जो होगी ना वर्टिब्रा, उसके अगर स्लिप होकर बाहर की तरफ आएगा उसकी तरफ, वो जगह स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस, ठीक है। फर्दर अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन वगैरह तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।